Welcome students in science class. In previous video we described about the reproduction through the seeds, reproduction by different parts of plants. Okay. Today we describe or deliver the topic seed dispersal. Why we are choose this topic seed dispersal? Because there are different way the seeds are dispersed from one place to another, and this is the essential. Okay, because inside a fruit there is the some fruit that contain the bear a large number of seeds. If all they are germinate near the parents plants, so there is the competition occurs between them for the nutrition, for the light, for the air, for the water. Okay, so this is the very essential for the seed dispersals. All seeds of given plants do not germinate near their mother plants. ठीक है, सभी मैक्सिमम जो सीड्स होते हैं वो सभी पेरेंट प्लांट मतलब जिसके थ्रू फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है उसके नियर जर्मिनेट नहीं करते हैं. दिस इज बिकॉज दे विल देन हैव टू स्ट्रगल टू गेट sufficient air, water, sunlight and nutrient, and many of them would die. Okay, क्यों जर्मिनेट नहीं करते हैं? रीज़न क्या है? बिकॉज दोज न्यू प्लांट दैट इज जर्मिनेटेड नियर द पेरेंट प्लांट दे स्ट्रगल गेटिंग द सफिशिएंट एयर. पेरेंट प्लांट और जो न्यू सीड जर्मिनेट कर रहा है उसके सबको रिक्वायर्ड है क्या? एयर मीन्स ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट. ये जो 4 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए प्लांट को, सबको रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, पेरेंट प्लांट को एज वेल एज द जो सीडलिंग हुए हैं छोटे से प्लांट को, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा. ओके, इस कंपटीशन के कारण क्या होता है? सम प्लांट दैट इज एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, एयर एंड सनलाइट, सो दैट इज ग्रोथ. अदरवाइज दे आर डाइड इन द एब्सेंट ऑफ इन द डिफिशिएंट ऑफ एयर, वाटर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट. जिसको मिल जाता है वो ग्रोथ कर जाता है, जो जिसको नहीं मिलता वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है. नेचर देयरफॉर enables the seeds to move over to other places. इसीलिए नेचुरली जो सीड होते हैं डिस्पर्स होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो पेरेंट प्लांट के पास जर्मिनेट नहीं करते, उसका डिस्पर्सल होता है. इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट्स. इसके लिए कई एजेंट हैं जिसके थ्रू सीड ट्रांसफ़र होते हैं, सच एज एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड, insect and human beings. They all help the transfer of seeds of different places. सभी ये सीड को डिस्पर्स करने में सहायता करते हैं. What is the seed dispersal? The process of transfer of seeds to different places is called seed dispersal. So that is clear. What is the seed dispersal? The process of transfer of seeds to different places is called the seed dispersal. Okay, so how can they are dispersed from one place to another? There are different way the seed dispersal. First one is the human made way. Human made way क्या है? Humans select seeds of useful plants and sow them in the soil to get new plants.
जो ह्यूमन बींग्स है वह जैसे सीरियल्स के हैं उसके सीड को फील्ड में डालते हैं, ग्रोथ कराते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। ओके, या यूजफुल प्लांट है उसके सीड को ग्रोथ कराते हैं। दैट इज क्लियर। यू मस्ट हैव सीन फार्मर सोइंग सीड्स ऑफ डिफरेंट यूजफुल प्लांट्स लाइक वीट, मेज एंड मस्टर्ड। ठीक है, जो फार्मर होते हैं वो जिस सीड की रिक्वायर्ड है, जिस तरह के प्लांट की रिक्वायर्ड है उसको ग्रोथ कराते हैं, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ एंड ब्रेसिका, मस्टर्ड मीन्स सरसों को ग्रोथ कराते हैं। दैट इज क्लियर। और दूसरा प्रोसेस है सीड डिस्पर्सल का थ्रू द नेचुरल वे, मीन्स नेचुरली दैट इज आल्सो डिस्पर्स ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Plant, especially those growing in forest, use lots of natural methods to scatter their seeds. वह प्लांट जो फॉरेस्ट में ग्रोथ करते हैं नेचुरली दे आर डिस्पर्स द सीड्स। These are given below. There are some process through which they are dispersed. First one, dispersal through the wind, या dispersal by the wind. तो there are different process of naturally way का। पहले dispersal by winds, second one dispersal by water, third one dispersal by birds, insects and rodents, fourth one dispersal by human and animals, and last one dispersal through the cracking and bursting. Okay, so this is the 5 way of the naturally the dispersal of seeds that is takes place. Okay, so naturally we are discuss one by one. First, dispersal by wind. The seeds of madar, you see oak that is given here, madar, thistles and dandelion get dispersed through the winds. जो मदार है, डेंडलियन है, इसकी जो सीड्स होते हैं वह विंड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं या डिस्पर्सल होते हैं। दिस सीड्स आर वेरी लाइट, स्मॉल एंड हैव हेयर ऑन देम। इसके सीड्स बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल लाइटली होते हैं, एंड on the surface of seeds they have the hair. The hair enable them to fly with the wind and get dispersed. और यही हेयर जो प्रेजेंट होता है इनको फ्लाई विंड के साथ करने में सहायता करता है, और जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्पर्स हो जाता है। जस्ट लाइक यू सी हियर, ये मदार का है, ठीक, यू सी ये सीड है, इसके चारों तरफ ये हेयर होता है, कॉटनी हेयर होता है, जिसके थ्रू ये डिस्पर्स होता है। जस्ट लाइक अनदर स्पीसीज दैट इज गिवन हियर, ये सीड्स है, इसके सरफेस पर हेयर लगे हैं, दैट इज डिस्पर्स थ्रू द विंड। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय वाटर। प्लांट विच आर नियर वाटर बॉडीज जैसे सी, रिवर, लेक डिस्पर्स देयर सीड थ्रू द वाटर। इसके सीड जो प्लांट वाटर के नियर वाटर मतलब सी, रिवर या लेक के पास प्रेजेंट होते हैं, उनके सीड वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला, लोटस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विच डिस्पर्स देयर सीड थ्रू द वाटर। कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू ये वाटर के थ्रू ये सीड इसके डिस्पर्स होते हैं। द सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरिड अवे। ये सीड जो होते हैं वाटर के साथ कुछ दूर तक फ्लो करते हैं। दे सिंक इनटू द मड ऑन द शोर और ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द वाटर बॉडीज। वह सीड्स कुछ समय फ्लो करने के बाद जो बैक किनारे होता है जहाँ मड होता है वहाँ पर ये सिंक डूब जाते हैं, वहीं पर ये ग्रोथ कर जाते हैं। जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ
water lily, in case of lotus, in case of coconut. You see the example of coconut that is dispersed through the sea water. ठीक है. In case of pond you see lotus and water lily. इन सब के seed that is dispersed through the water. That is clear. Next, a dispersal by birds, insect and rodents. Sparrow, ants, rats, squirrel, etc. carry fruits and grains to their burrows, nest and other places. ठीक है, जैसे बर्ड्स हैं, रैट्स हैं, स्क्वायरल है, ये सब क्या करते हैं, सीड और फ्रूट को अपने बरोज जो बिल बनाए वहाँ तक ले जाते हैं. बर्ड्स अपने नेस्ट में ले जाती है. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहाँ पर फॉर्मेशन हुआ वहाँ से वहाँ तक, मीन्स ये क्या हुआ, डिस्पर्सल हुआ. द ड्रॉप सम ग्रेन्स आर सीड्स ऑन देयर वे, और इसको ट्रांसफ़र ले जाने में कुछ सीड आपका डिस्पर्स हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं. दिस में ग्रो इनटू प्लांट इन द न्यू एनवायरनमेंट, और वहाँ पर वह न्यू प्लांट ग्रोथ कर जाता है. इफ़ देयर इज़ द मेंटेन द डिफरेंट कंडीशन फॉर द प्लांट जर्मिनेशन, यदि उसको सुटेबल कंडीशन मिलता है तो वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाता है. दैट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वन, डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स. फ्रूट्स विच आर फ्लैशी एंड जूसी are eaten by humans and other animals and their seeds that grow throw away. ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं और उसको सीड को थ्रो ऑन करते हैं. जस्ट लाइक दिस टाइम यू सी मैंगो, घर में मैंगो आता होगा, खाने के बाद सीड आप बाहर फेंक देते हैं. ठीक, और यदि उस सीड को सूटेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब टेम्परेचर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, एयर मिलेगा, तो वो ग्रोथ कर जाएगा. दैट इज क्लियर. जस्ट लाइक दैट इज गिवन एग्जांपल सम सीड्स ऑफ वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पंपकिन, गोर्ड ऑफन गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड्स. इस तरह के प्लांट के जो सीड होते हैं, खाने के बाद इसके सीड को हम लोग बाहर फेंक देते हैं, जो ग्रोथ करते हैं. दिस सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन. That is clear. Many plants like castor, burdock, cockleburr and mimosa depend on the animal including humans to carry their seeds away from their parent plants. जैसे कैस्टर है, बर्डॉक है, कॉकलर है, माइमोसा, ये डिपेंड होते हैं एनिमल्स पर, फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स पर, फॉर सीड डिस्पर्सल, सीड को ट्रांसफ़र करने के लिए. देयर फ्रूट्स आर हॉर्नी और हैव हुक ऑन देम. इन सब के सीड जो होते हैं हॉर्नी, कांटेदार होते हैं या हुक होते हैं सरफेस पर. दे गेट स्टक टू द क्लॉथ्स ऑफ ह्यूमन, वो ह्यूमन के क्लॉथ से, और स्किन, स्किन से अटैच्ड हो जाते हैं. एंड फर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल के फर होते हैं उसमें ये फंस जाते हैं. They get carried out to different places where they fall down and grow into the new plants. और वहाँ से वो carried out मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं डिफरेंट प्लेस को, और where they fall down, जहाँ पर वो गिरते हैं वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं. That is clear. Just like that is given one example is cockleburr. Okay. And last process, the seed dispersal, that is the dispersal through the cracking and bursting. Some fruits cracks and burst on ripening and scatter their seeds far away from the parent plant. कुछ पौधों के जो फ्रूट्स होते हैं मैच्योर होने पर या पकने पर, राइपनिंग होने पर, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं. And this is the disperse from the parent plants. This may grow into the new plants, और ये डिस्पर्सल के बाद न्यू प्लांट को ग्रोथ करते हैं जहाँ पर सीड पड़े रहते हैं. जस्ट लाइक एग्जांपल इन केस ऑफ पीस, जो मटर होता है, मटर के फली यदि प्लांट खेत में ही रहे
तो जो मैच्योर होता है वो अपने आप सीड उसके बिखर जाते हैं। लेडीज फिंगर भिंडी हो तो उसके में देख सकते हैं आप। एंड बालसम, बालसम जो खीरा बोलते हैं उसके सीड्स भी जब राइपेन हो जाएंगे तो ब्रस्ट कर जाता है और उसके सीड बहुत दूर तक जाते हैं। गेट डिस्पर्स बाय दिस मेथड्स। So this is the different process for the seed dispersal. That is clear? Okay, thank you for watching the video.